डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स और हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ दिस कोलाइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूवमेंट ऑफ दिस डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज इट इज द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। Charge on colloidal particles or electrical properties. Charge on colloidal particles. Charge on colloidal particles. Charge on colloidal particles. जो हमारे पास colloidal solution होता है, it has two components. One is dispersed phase, another is dispersion medium. जो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होता है, दैट इज द कोलाइडल पार्टिकल्स, दे कैरी सम चार्ज। जो इनके पास चार्ज होता है, इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, इट कैन बी नेगेटिव चार्ज। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कोलाइडल पार्टिकल्स के पास चार्ज होता है, दे ऑल हैव द सेम चार्ज। दैट मीन्स आइदर ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्जड और ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्जड। दिस इज द पॉइंट नंबर सेकंड। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, अगर कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज नहीं होता, then they will combine with one another and result in the formation of precipitate. They will come together and form the aggregate, resulting in the precipitate. But because of similar charge and equal charge, जब ये एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं, they repel one another. As a result, ये जो चार्ज होता है, चार्ज on colloidal particle, it is responsible for the stability of the colloids, because ये जो चार्ज है, it will not allow the colloidal particles to come close to one another and result in the formation of aggregate. So हम लिखेंगे point number 1, all the colloidal particles carry the charge. First point, all colloidal particles, जो colloidal particles होते हैं, all colloidal particles कैरी चार्ज। इनके पास चार्ज होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड, द चार्ज ऑन ऑल कोलाइडल पार्टिकल इज सेम। चार्ज ऑन ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स, जो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे एक कोलाइडल सॉल्यूशन में, चार्ज ऑन ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स विल बी सेम। ये सेम होगा, दैट इज दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्जड, और नेगेटिवली चार्जड। दिस इज पॉइंट नंबर सेकंड। अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर थर्ड, जो ये चार्ज होता है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइड। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जब भी कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दे रिपेल वन अनदर। एज अ रिजल्ट, दे विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, Now the point number third, जो point number third है, charge is responsible for stability of colloids. Charge is responsible for stability of colloid. Stability of colloids. Charge is responsible for stability of colloids. It is responsible for stability of colloids. What is the reason how it is responsible for stability of colloids? Because जो similar charge होता है on colloidal particles, because similar charge prevents the ये प्रिवेंट करता है कोलाइडल मॉलिक्यूल्स को
prevents the colloidal molecules from aggregating. This is the point number third. ये जो चार्ज होता है, चार्ज is responsible for stability of the colloid. How it is responsible for the stability of the colloid? Actually, ये जो चार्ज होता है, charge on colloidal particles, it will prevent the colloidal molecules or colloidal particles. It will prevent the colloidal particles from aggregating. It will not allow them to aggregate. So the first point is जो colloidal particles होते हैं they carry charge. Second point, जो सारी colloidal particles होते हैं, colloidal particles they carry the similar charge. All the colloidal particles carry the similar charge. This is the point number second. Point number third, ये जो charge होता है, charge on colloidal particles, it is responsible for the stability of the colloid. It is responsible for the stability of the colloid. How it is responsible for the stability of the colloid? Actually, it prevents the colloidal particles from aggregating. They will not aggregate because जब ये colloidal particles एक दूसरे के करीब आएंगे, because of similar charge, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे. As a result, they will not form the aggregate. This was the point number third about this charge on colloidal particles. Charge on colloidal particles. Now another point, जो charge on colloidal particles है, it can be due to charge is due to one or more reasons. ये जो चार्ज होगा, it can be due to one or more reason. जो first है, suppose जो चार्ज होगा, it can be due to first point, due to electron capture by colloidal particles electron capture by colloidal particles during electrodispersion of metals. Second, it can be due to preferential adsorption of ions. It can be due to the preferential adsorption of ions. So charge जो होगा, charge on colloidal particles, it can be due to the electron capture by the colloidal particles during the electrodispersion of metals. It can be due to the preferential adsorption of ions. Preferential adsorption of ions. जब preferential adsorption ions होता है, there is a formation of double layer. अब हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज जब आप कंबाइन करते हैं द मिक्सचर ऑफ AgNO3 एंड Ki, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. जो यहां पे कोलोइडल पार्टिकल्स बनते हैं, दैट इज AgI. दिस इज अ कोलोइडल पार्टिकल. अब जो ये कोलोइडल पार्टिकल होगा, इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड. हाउ इट इज फॉर्मड, दैट मीन जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हम पढ़ेंगे, यहां से हम इसको पढ़ेंगे. सपोज जो AgNO3 है, AgNO3 प्लस Ki है. अगर हम AgNO3 को लेंगे इन एक्सेस, AgNO3 को लेंगे इन एक्सेस, सपोज वी टेक AgNO3 इन एक्सेस, AgNO3 इसको हम ऐड करेंगे Ki. दिस इज एन एक्सेस. यहां पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स बनेंगे, दे विल बी AgI ऑब्वियसली. फिर जो AgI है, बिकॉज AgNO3 इज इन एक्सेस, दैट मीन्स Ag पॉजिटिव आयन्स विल बी इन एक्सेस.
ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इट विल एब्सॉर्ब Ag पॉजिटिव आयंस ऑन इट्स सरफेस। अगर आप AgNO3 को कंबाइन करेंगे विद द Ki, मिक्सचर ऑफ AgNO3 plus Ki, it will result in the formation of colloidal particle that is AgI. AgI because हमने यहाँ पे AgNO3 को एक्सेस में लिया, Ag पॉजिटिव आयन जो है दे आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ AgI. This will result in the formation of positively charged colloidal particle. That means ये जो पार्टिकल होगा अब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस। दिस इज द फर्स्ट केस। केस नंबर सेकंड, अगर हम अगेन लेंगे मिक्सचर ऑफ AgNO3 प्लस Ki, बट यहां पे हम क्या करते हैं, Ki को लेंगे इन एक्सेस। जब आप Ki को एक्सेस में लेंगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ AgI। दिस इज द कोलाइडल पार्टिकल। इस पे एब्सॉर्ब होगा I नेगेटिव आयन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ये जो कोलाइडल पार्टिकल होगा इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। दस हम इस मिक्सचर से कोलाइडल पार्टिकल को बना सकते हैं आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 and Ki. If the concentration of AgNO3 is more, then positively charged colloidal particle will be formed. Second, if the concentration of Ki is more or Ki is present in excess, it will result in the formation of negatively charged colloidal particles. This is how positively charged and negatively charged colloidal particles are formed. Now, यहाँ पे जो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल बनेगा और यहाँ पे बनेगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल। ये जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है, दिस पॉजिटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट द काउंटर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। इट विल अट्रैक्ट द काउंटर आयंस फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन। जो चार्ज होगा ऑन दिस इट विल अट्रैक्ट द काउंटर आयंस। ये अट्रैक्ट करेगा काउंटर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। दैट मीन जो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव, it will attract I negative from the solution. Ag positive will attract I negative from the solution. Similarly, यहां पे जो I negative है that is absorbed on the surface of AgI, it will attract the K positive ions from the solution. That means counter ions from the solution. AgNO3 plus Ki, it will result in the formation of AgI. ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा it will be, suppose it is negatively charged. नेगेटिवली चार्ज्ड मीन्स इस पर एब्सॉर्ब होंगे I नेगेटिव आयंस। अब जो I नेगेटिव आयंस है दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। अब जो I नेगेटिव आयन है, I नेगेटिव आयन, इट विल अट्रैक्ट काउंटर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो काउंटर आयन होगा दैट विल बी K पॉजिटिव। दैट विल बी K पॉजिटिव। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज द कोलाइडल पार्टिकल, दिस इज द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल एंड दिस इज द काउंटर आयन फॉर दिस I नेगेटिव। अगर आप देखेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स पे दो लेयर बन गई यहां से, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर। जो फर्स्ट लेयर है दैट इज दिस लेयर I नेगेटिव दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। इट इज टर्म्ड एज कंपैक्ट लेयर, कंपैक्ट लेयर, और इट इज टर्म्ड एज फिक्स्ड लेयर। I नेगेटिव विल बी टर्म्ड एज कंपैक्ट लेयर और फिक्स्ड लेयर। अब जो I नेगेटिव है इट अट्रैक्ट्स काउंटर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। दैट मीन्स K पॉजिटिव आयंस, जो K पॉजिटिव आयन है इट विल फॉर्म अनदर लेयर। दिस लेयर इज टर्म्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर। Diffused layer. This is the negatively charged layer. This is the positive charged layer. There will be the potential difference set up between these two layers. The potential difference set up between the layers, that is diffused layer and the fixed layer or compact layer,
it is termed as electrokinetic potential or it is termed as zeta potential. It is termed as electrokinetic potential or zeta potential. Now what is zeta potential? Zeta potential की जो definition है, it is the potential difference set up between the layers the potential difference set up between the compact layer and diffused layer. Compact layer and the diffused layer. The potential difference set up between the compact layer and the diffused layer ये जो दो लेयर्स होते हैं, कंपैक्ट लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर, ऑफ अपोजिट चार्जेस, इनका जो चार्ज होगा दैट विल बी अपोजिट, इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और or it is also termed as zeta potential. So what is zeta potential? What is zeta potential? जब आप HaNO3 को कंबाइन करेंगे विद Ki, there is the formation of colloidal particles. Now जो एक colloidal particle होगा, it can be positively charged or it can be negatively charged. Suppose अगर हम Ki को लेंगे in excess, there is the formation of negatively charged colloidal particle. ये जो यहां पे colloidal particle होगा, it will be negatively charged. Negative charge will be due to the absorption of I negative ions. अब जो I negative ions है, they will attract the counter ions from the solution. As a result, colloidal particle पे दो layers बन जाते हैं. One is termed as compact layer और fixed layer. जो दूसरी वाली लेयर है, that is termed as diffused layer. This is the compact layer, this is the diffused layer. अब जो compact layer और diffused layer है, these are the two layers with the opposite charge. यहां पे potential develop होगा. The potential developed between the compact layer and the diffused layer of opposite charges, that is termed as electrokinetic potential or it is termed as zeta potential or it is termed as zeta potential. Another important point about this compact layer or zeta potential, another important point, अगर आपको याद होगा, this the presence of small amount of electrolyte, that is very important for the stability of a colloid. But अगर हम electrolyte को excess में ऐड करेंगे, वहां पे जो stability of colloid है that decreases because it forms the precipitate. How it actually forms the precipitate? जब हम electrolyte ऐड करेंगे, जो diffused layer है, diffused layer decreases. जब diffused layer decrease होगा, there is decrease in the zeta potential. जो zeta potential, it is responsible for the stability of the colloid. Thus, the stability of the colloid decreases and it results in the formation of precipitate. So, we can add this point, addition of electrolyte in excess. अगर आपने इसको electrolyte ऐड किया, electrolyte in excess, addition of electrolyte in excess will decrease. इससे क्या decrease होगा? Will decrease the diffused layer, so there will be क्या होगा? Decrease. There will be decrease in zeta potential. Zeta potential कम होगा. There will be decrease in zeta potential. जब zeta potential decrease होगा, as a result, there is decrease in repulsion.
जब रिपल्शन भी डिक्रीज होगी, दस जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स, thus the colloidal particles जो होंगे, colloidal particles they precipitate, addition of electrolyte in excess, it will decrease the diffused layer. जब diffused layer decrease होगा, वहां पे zeta potential decrease होगा. जब zeta potential decrease होगा, there is decrease in the repulsion. repulsion जो है it is responsible for stability of colloid. जब colloidal particles के बीच में जो repulsion है ये decrease हो जाएगी, ये कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दस इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइड. दिस वाज ऑल अबाउट दिस, दैट इज द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स. जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी द चार्ज, इनके पास जो चार्ज होगा दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्जड और दे आर नेगेटिवली चार्जड. पॉइंट नंबर सेकंड, सारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे इन पे एक ही चार्ज होगा, दैट इज वेदर दे आर पॉजिटिवली चार्जड और दे आर नेगेटिवली चार्जड. पॉइंट नंबर थर्ड, जो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड. हाउ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड? ये कोलाइडल पार्टिकल्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट और फ्रॉम एग्रीगेटिंग, ये इसको प्रिवेंट करता है कोलाइडल पार्टिकल्स को. नाउ जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आइदर कैरी द पॉजिटिव चार्ज और दे कैरी द नेगेटिव चार्ज. जो ये चार्ज होगा इट कैन बी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोड डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स और ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस. जब आयंस एडसॉर्ब होते हैं ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, इससे पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाता है. नाउ ये जो आयंस है दे विल अट्रैक्ट द काउंटर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन. एज ए रिजल्ट जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पर दो लेयर्स होते हैं, टू लेयर्स ऑफ चार्ज. वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज, और वन इज नेगेटिव देन अनदर विल बी पॉजिटिव. That means two oppositely charged layers are formed. जो पहली लेयर है उसको कंपैक्ट लेयर कहते हैं और जो दूसरी लेयर है उसको डिफ्यूजर लेयर कहते हैं. अब यहां पे पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन कंपैक्ट लेयर एंड दिस डिफ्यूजर लेयर, दैट इज टर्म्ड एज जीटा पोटेंशियल. अगर हमने अब इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, व्हाट विल इलेक्ट्रोलाइट डू? इलेक्ट्रोलाइट जो है इट डिक्रीजेस द डिफ्यूजर लेयर. जब डिफ्यूजर लेयर कम होगा जीटा पोटेंशियल कम होगा. जब जीटा पोटेंशियल कम होगा उससे क्या होगा, जो रिपल्शन बिटवीन द रिपल्शन होगा बिटवीन द कोलाइडल पार्टिकल्स दैट विल डिक्रीज. जब वो डिक्रीज होगा दे विल कंबाइन विद वन अनदर एंड फॉर्म द एग्रीगेट एंड दस वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा. दैट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडस. नाउ अब हम एक और पॉइंट लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सिंपली याद रखना है. पॉजिटिवली चार्जड कोलाइडस एंड नेगेटिवली चार्जड. पॉजिटिवली चार्जड कोलाइड्स को आप याद रखेंगे एंड नेगेटिवली चार्जड. यहां से भी एक क्वेश्चन आता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ये कॉन्सेप्ट आप वहां पे अप्लाई करेंगे. वो जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स. एक आपको ये पता होना चाहिए वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज कोलाइड एंड वेदर इट इज नेगेटिव चार्ज कोलाइड, और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है दैट इज टर्म्ड एज हार्डी-शीवर्स रूल, जो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. पहले आप याद रखेंगे पॉजिटिवली चार्जड कोलाइडल पार्टिकल्स कौन से होते हैं. फर्स्ट इज हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स. हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल Al2O3 X times water, Fe2O3 X times water. This is the first. Second, पॉजिटिवली चार्जड में आएगा बेसिक डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू, and another is hemoglobin. Hemoglobin always forms this, it will form the positively charged colloidal particle. और जो लास्ट वाला है दैट इज ऑक्साइड्स. एग्जांपल इज टाइटेनियम ऑक्साइड. These are the positively charged colloidal particles. First is the hydrated metal oxides, जिसमें एग्जांपल है Al2O3 Fe, that's ferrous oxide, Fe2O3 X times water, etc. Basic dyes, hemoglobin, oxides. These are the examples of positively charged colloids.
नाउ जो मेटल्स होते हैं, मेटल सल्फाइड्स, metals, they are negatively charged colloidal particles. Metals, for example, silver, gold, etc. Another is metal sulfides. Example जो है As2S3. Arsenic sulfide is the example. Metal sulfide, CDS. सेकेंड जो है, सेकेंड दिस इज द एसिडिक डाई. एसिडिक डाइज में आएगा कोंगो रेड. कोंगो रेड जो है, इट इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक डाई, कोंगो रेड. अनदर वन इज सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च गम जिलेटिन. सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च गम जिलेटिन एटसेट्रा. ये आपको याद रखने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड. जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड्स है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड, इसमें एग्जांपल है हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स. दिस इज द एग्जांपल. बेसिक डाइस इज द एग्जांपल. मिथाइल ब्लू जो है, दिस द एग्जांपल ऑफ बेसिक डाई. हीमोग्लोबिन इज द एग्जांपल. नेगेटिवली चार्ज्ड, इसमें आएगा मेटल, सिल्वर, गोल्ड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, उसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, दे विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. Metal sulfides is another example. And finally acidic dyes. Acidic dyes की जो example है, that is Congo red. And finally the solution of starch, clay, etc. इसमें आती है. Now another important point. अब जो हमारे पास colloidal particles होते हैं, अब जो हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे, दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्जड और दे आर नेगेटिवली चार्जड. अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड और टुवर्ड्स एनोड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कोलोइडल पार्टिकल्स मूवमेंट दिखाते हैं टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. दैट मीन्स टुवर्ड्स एनोड और कैथोड डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज. दिस मूवमेंट ऑफ colloidal particles towards the electrodes in presence of electric field is termed as electrophoresis. So अब हम लिखेंगे definition of electrophoresis. The movement of colloidal particles, movement of colloidal particles movement करते हैं. movement of colloidal particles towards electrodes in presence of electric field. Colloidal particles movement करते हैं towards electrodes in presence of electric field. In presence of electric field, it is termed as electrophoresis. It is termed as electrophoresis. It is termed as electrophoresis. Movement of colloidal particles towards electrode in presence of electric field is termed as electrophoresis. Is termed as electrophoresis. Now, if the colloidal particles are positively charged, if the colloidal particles are, अगर जो colloidal particles हैं, if they are positively charged, or they can be negatively charged. They can be negatively charged. Colloidal particle का जो charge है, it can be positive or it can be negative. If the colloidal particles are positively charged, then their movement towards the electrode, it is termed as cataphoresis. Movement of positively charged colloidal particles, that is termed as cataphoresis. अगर colloidal particles negatively charged होंगी, then इनकी जो movement है towards electrode, that is termed as anaphoresis. It is termed as anaphoresis. This is cataphoresis and this is the anaphoresis. Now another point. अगर हम somehow जो colloidal particle है, इनकी movement को हम stop करेंगे, then जो colloidal solution होगा, इसमें जो dispersion medium होगा, that will start moving towards the electrodes. That will start moving towards the electrodes. That is termed as electroosmosis.
अगर हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देयर इज मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। इस मूवमेंट को कहते हैं सिंपली दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इफ कोलोइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड then it is termed as cataphoresis. If they are negatively charged, then it is termed as anaphoresis. Another point, अगर हम somehow जो कोलोइडल पार्टिकल है इनकी मूवमेंट को स्टॉप करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देन वहां पे क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। दिस मूवमेंट ऑफ dispersion medium towards the electrodes in presence of electric field is termed as electroosmosis. Electroosmosis. तो what is actually electroosmosis? यहां पे हमने मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स को स्टॉप किया है बाय यूजिंग सम मेम्ब्रेन्स। एज अ रिजल्ट वहां पे डिस्पर्शन मीडियम की मूवमेंट हो जाती है। सो द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, movement of dispersion medium, movement of dispersion medium towards electrodes, dispersion medium की मूवमेंट इलेक्ट्रोड्स की ओर, towards electrodes in presence of electric field, in presence of electric field, in presence of movement of dispersion medium towards electrodes in presence of electric field, it is termed as electroosmosis. This was all about today's lecture. हमने स्टार्ट किया with the properties of this charge on the colloidal particles. हमने स्टार्ट किया colloidal particles carry the charge, फिर हमने रीजन लिखा why they carry the charge, और जो चार्ज है how it is responsible for the stability of colloid वो भी हमने पढ़ा। फाइनली जो चार्ज्ड पार्टिकल colloidal particles होते हैं इनके पास चार्ज होता है। अगर इनके पास चार्ज होगा दैट मींस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। दिस मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स को समहाउ स्टॉप करेंगे वहां पे डिस्पर्शन मीडियम की मूवमेंट हो जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।